زرمی نے اپنے کمرے میں آئی تو باسط لباس تبدیل کیے بیڈ پر چت ٹانگوں کی کینچی بنائے سیدھا دراز تھا۔ آنکھیں موند رکھی تھی مگر اوپر رکھے پاؤں کی حرکت اس کی بیداری کا پتہ دیتی تھی۔ ہٹکے کی آواز پر آنکھیں کھولی تھی، نیند سے بوجھل سرخ ڈوڑے لیے قاتل سیاہ آنکھیں۔ زرمینے کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تو تیزی سے نظریں چڑائی۔ بچے، ایک لفظی سوالیہ انداز، امی کے پاس ہی سو گئے ہیں۔ آگے بڑھتے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ وہ پھر سے پلکیں موند گیا، الماری سے سادہ سا جوڑا نکالا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر جویلری اتارنے لگی۔ آئینے میں نظر آتے باسط کے عکس کو دیکھ کر دل نے خواہش کی تھی کاش وہ کوئی میٹھی سی سرگوشی کرتا۔ آج سب نے اس کی تعریف کی تھی، ایک وہی تھا جو بے نیاز بنا رہا، اسے آنکھ بھر کر بھی نہ دیکھا۔ زرمینے کا دل اب اس تیاری سے بیزار ہوا تھا۔ کیا فائدہ تھا ایسے حسن کا جب محرم کی ہی آنکھ میں ستائش نہ ابھرے؟ پھر اسے اپنے دل کی اس اداسی پر ہنسی بھی آئی۔ اپنے دل کو سمجھاؤ زرمینے، باسط نے تمہیں زندگی میں جگہ دی ہے، دل میں نہیں۔ خود اذیتی سے وہ اپنا مذاق خود اڑا رہی تھی۔ زرمینے، کیوں کیا تم نے ایسا؟ تمہیں ایک بار بھی احساس نہیں ہوا کہ تم کیا کرنے جا رہی تھی؟ مجھے نہیں پتا تھا اس خوبصورت اور معصوم چہرے کے پیچھے اس قدر مکروہ اور بدصورت حقیقت چھپی ہوگی۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے شانوں میں کھبوئے اسے جھنجھوڑتا وہ غضب بھری سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا دھیمی آواز میں چنگاڑ رہا تھا۔ وہ پوری جان سے کانپ اٹھی تھی، ماضی کے کنوار سے ایک کرب بھری یاد میں جھانکا تھا۔ آنکھوں کی نمی صاف کرتی وہ واش روم گئی تھی۔ پورا جسم تھکن سے چور تھا۔ شاور لے کر سادہ سا ہلکا گلابی سوٹ پہنے باہر آئی۔ ساری لائٹس آف کی تھی، صرف باسط کی سائڈ کا لیمپ چل رہا تھا۔ اس کا دل شدت سے چاہا تھا کہ وہ سو رہا ہو، اس وقت وہ اس کی جانب سے کسی پیش قدمی کی متحمل نہیں تھی، لیکن ایسا صرف وہ سوچ سکی تھی۔ باسط کے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کرنے پر وہ بنا مزاحمت کیے اس کی طرف کھینچی چلی گئی تھی۔ اس کے نم دراز بالوں میں چہرہ چھپا کر وہ اس پر حاوی ہوتا چلا گیا تھا۔ زرمینے کا جی چاہا تھا کہ وہ اس کا اپنے وجود کے گرد بنا مضبوط حصار توڑ کر کہیں بہت دور بھاگ جائے جہاں وہ اس تک رسائی حاصل نہ کر سکے، مگر ستم ظریفی کا یہ عالم تھا کہ وہ اسی کی باہوں میں مفید فقط سوچ سکی تھی۔ ایسا کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اس کی بڑھتی جسارتوں میں اگر سختی کا عنصر نہ تھا تو نرمی بھی مقفوض تھی۔ زرمینے کی آنکھ سے ایک بے بس آنسو نکل کر اس کی کن پٹی میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ کمرے کی فضا بوجھل اور اداس سی ہوتی گئی، جس میں نہ تو کوئی میٹھی سی دل کو گدگدا دینے والی سرگوشی گونجی تھی اور نہ ہی کسی کی شرمگی سی ہنسی کی جل ترنگ۔ اور جہاں قربتوں میں محبتوں کا ولولہ نہ ہو وہاں دل میں کوئی میٹھی سی چبن نہیں، سانسوں کو بوجھل کرتی ان فضاؤں میں رقص کرتی ہے۔ قدموں کی چاپ پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، نظریں جھکا گئی۔ وہ متوازن چال چلتا اس تک آیا تھا اور اس کے سامنے برجمان ہوتے اس کے دلکش چہرے کو نظروں کے حصار میں لیا تھا۔ السلام علیکم مسز شہریار، آواز سے شوخی اور سرشراری جھلک رہی تھی۔ یشل نے بامشکل جواب میں سر ہلایا تھا۔ اس کا یہ شرمایا گھبرایا روپ شہریار کی ہارٹ بیٹ مس کر گیا تھا۔ کتنی دیر وہ آنکھوں میں محبت لیے اسے تکتا رہا تھا، یہاں تک کہ یشل نے اس کی خاموشی سے خائف ہو کر پلکیں اٹھائی تھی، نگاہیں ملی تھی اور اس کی براؤن آنکھوں کی تاب نہ لاتے اس کی آنکھیں چپ گئی تھی۔ شہریار نے یہ منظر بہت محظوظ ہوتی آنکھوں سے دیکھا تھا، پھر تھوڑا سا آگے کی جانب جھک کر سائڈ ڈرور سے سرخ رنگ کی ایک مخملی باکس نکالا تھا، اس میں سے نازک سی خوبصورت چین برآمد کی اور پھر اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ یشل ہلکا سا تبسم لبوں پر لائے سر جھکا گئی، تھوڑا سا اس کی جانب جھک کر اب وہ اسے چین پہنا رہا تھا۔ اس کے پرحدت ہاتھوں کے لمس نے اس کے جسم و جاں میں سنسنی خیز لہر دوہرا دی تھی۔ وہ پوری جان سے کانپی تو اس کی غیر ہوتی حالت کو محسوس کرتے شہریار نے اس کا سرد پڑتا ہاتھ اپنی ہاتھوں کی گرفت میں لیا تھا۔ زرمینے کچھ کہہ رہی تھی، کوئی غلط فہمی کی بات کر رہی تھی شاید۔ کیا بات ہے؟ نرم لہجہ اور مٹھاس بھری آواز میں کہا وہ گڑبڑائی۔ اسے یوں ہی خاموش دیکھ کر شہریار کی دوبارہ آواز سنائی دی، یشل زبان ساتھ لائی ہو نا؟ بچپن میں تو بہت چلتی تھی،
आज क्यों सीटी गुम है? वो हैरान सा उसे देख रहा था। देखें शहरयार, मैं बताए देती हूँ, मैं कोई फिल्मों ड्रामों की रोती धोती हीरोइन नहीं हूँ जो आपके जुल्म चुपचाप सह लूंगी, बल्कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने वालों में से हूँ। अगर आप ऐसा कोई भी इरादा रखते हैं तो बेहतर होगा इसे अभी के अभी तर्क कर दें। अपनी तमाम हिम्मतें जमा करती वो उसकी जानिब देखते तेज तेज बोलती शहरयार को वर्ता हैरत में डाल गई थी। मैं क्यों जुल्म करूंगा तुम पे? और ये ईंट पत्थर ये सब क्या बोले जा रही हो? वो उलझी निगाहें उस पर जमाए हुए था। मुझे पता है ऐसा ही होता है, मैंने पढ़ा है नॉवेल्स में। हीरोइन चुलबुली सी होती है, बचपन में शरारतों से हीरो को तंग करती है और फिर शादी के बाद हीरो उसको बेवकूफ़ समझता है, उसको जिच करता है और इससे बदला लेता है। इससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। वो जो अपने ही धुन में बोले जा रही थी। शहरयार अब उसे फटी आंखों से देख रहा था। फिर उसने दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाए थे। अल्लाह ताला, आपने मेरे नसीब में ये एंटीक पीस रखा है, मुझे सब्र जमील अता फरमाइएगा। शहरयार ने बेचारगी से कहते उसे देखा कि वो भोलपन से उसे देख रही थी। चेहरे पर संजीदगी और अंदाज में मतानत लाए उसके दोनों हाथ अपने हाथों में कैद किए वो बोल रहा था, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा यशल, शादी कोई खेल नहीं है। मैंने तुम्हें अपने निकाह में लिया है, अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। रोज़े महशर मुझसे तुम्हारे बारे में पूछगछ की जाएगी। मैं तुमसे अच्छा बर्ताव और तुम्हारे नानो नफके के लिए पाबंद किया गया हूँ। ये रिश्ता बाहिमी एतबार, इज्जत और मोहब्बत का मुतकाजी होता है। एक दूसरे की खूबियों और खामियों समेत अपनाना पड़ता है। हम दोनों को मिलकर कोशिश करेंगे कि इसे अच्छे से निभाएं और एक दूसरे के लिए अच्छे और हमदर्द लाइफ पार्टनर साबित हों। बोलो, दोगी ना मेरा साथ? चेहरे पर मुस्कान लिए वो आंखों में मोहब्बत भरी जोत लिए आखिर में उससे पूछ रहा था। वो जो एक ट्रांस की कैफियत में घड़ी उसे देखती सुन रही थी, हल्की फुल्की होकर दिल से मुस्कुराती अस्बात में सर हिला गई। वो कदरे पुरसुकून होती अब अपनी पुरानी जोन में लौट रही थी। चलें अब मेरी तारीफ करें, वो तो की ही नहीं आपने। अपना दुपट्टा चूड़ियों से सजे हिनाई हाथों से सेट करती वो मुस्कुरा कर कह रही थी। शहरयार ने उसे घूरा। पीच ग्रे कलर की मैक्सी जिस पर खूबसूरत गोल्डन काम हुआ था, लाइट से मेकअप में वो बहुत मासूम और हसीन लग रही थी। शहरयार के होंठों पर बड़ी खूबसूरत सी मुस्कान आन ठहरी थी जिसे वो कमाल महारत से छुपा गया। तारीफ किस बात की करूं, वो उसे देखकर संजीदगी से बोलते उसे जिच कर रहा था। यशल जो नजरें झुकाकर उसकी जानिब से कुछ अच्छा सुनने की मुंतजर थी, होंठों को हैरत की ज्यादती से नीम वा खोले उसे देखने लगी और ऐसा करते वो शहरयार को इतनी क्यूट लगी कि उसे अपना दिल डोलता महसूस हुआ। अच्छा, यूं तो मत देखो, करता हूं। मुस्कुराहट दबाकर उसे तसल्ली देते उसकी ठोड़ी को अपनी उंगली शहादत से जरा ऊपर उठाता वो बगौर उसका मनमोहना चेहरा देख रहा था। यशल की निगाहें शर्म से झुकी जा रही थी। चेहरे पर कौसो कज़ा के रंग बिखर गए थे, शानदार, लाजवाब। वो मबहूत से अंदाज में गमगीन लहजा लिए अपनी खूबसूरत आवाज का जादू चला रहा था। क्या ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट है, सीरियसली तुम्हें तो बदल कर रख दिया है। बहुत टैलेंटेड है यार, मानना पड़ेगा। ऐसे तारीफ करता है कोई अपनी नई नवेली दुल्हन की? खूनख्वार नजरों से उसे घूरते वो दांत किचकिचाकर बोली, हाँ तो तुम क्या चाहती हो? शादी की पहली रात ही गुनहगार हो जाऊं झूठ बोलकर? तुमने तारीफ का कहा था, मुझे जो काबिल तारीफ लगा बता तो दिया। अब मुझे यकीन आ गया है आप मुझसे बदला ले रहे हैं। और रूहान सी हुई। बदले तो मैं तुमसे साड़े लूंगा यशल शहरयार, और वो भी सूद समेत, मगर अंदाज ऐसा होगा कि तुम खुद पर नाज करोगी। बात बढ़ाकर उसके कान से झुमका निकालते उसकी सुर्ख पड़ती कान की लो को अपनी उंगली शहादत और अंगूठे से सहलाते वो मानी खेज लहजे में बोला तो यशल अपने आप में सिमटने पर मजबूर हो गई थी। उसके अपने चेहरे पर झुकने पर वो गुलनार चेहरा लिए उसके सीने में खुद को छुपा गई थी। कमरे की फिजा में मोहब्बत गीत गुदगाती हंसती मुस्कुराती उनके मिलन पर उनकी खुशियों के लिए दुआगो थी। अगले दिन वलीमे की तकरीब बखैर आफियत अपने अंजाम को पहुंची तो सब ने सुख का सांस लिया था। बासित और ज़रमीने बच्चों को लिए अगली सुबह निकल आए थे। दिन सुस्त रवि से निकल रहे थे। बासित की धूप छांव सी रफाकत में वो खुश ना सही मगर पुरसुकून जरूर थी। वो अपने बच्चों के हक में एक बेहतरीन बाप साबित हो रहा था।
जिस पर ज़रमीने अपने रब का शुक्र अदा करती ना थकती थी। मौसम बदल रहा था, फिजा में हल्की हल्की खुनकी महसूस होने लगी थी। उसे सुबह से ही अपनी तबीयत खराब लग रही थी, मगर उसने परवाह नहीं की। वैसे भी कितने मौसम गुजर गए थे, वो सर्दो गर्म से बेबहरा हो चुकी थी। शाम तक वो बुखार में तप रही थी। तबीयत की नकाहत के बावजूद वो किचन में खाना बना रही थी जब बासित किचन में पानी पीने आया था। एक गैर इरादी नज़र उसकी जानिब उठी तो वो ठटका। कुछ गैर मामूली होने का एहसास हुआ तो बगौर उसका जायजा लिया था। ज़रमीने का चेहरा सुर्ख हो रहा था, उसकी आंखें भी मुतवरुम सी हो रही थी। ज़रमीने, तुम ठीक हो ना? कहते हुए पास आकर उसके माथे को हाथ से छुआ तो वो आग की मानन जल रही थी। बासित को सख्त गुस्सा आया। पागल हो गई हो, बुखार में तप रही हो और तुम्हें यहाँ काम की पड़ी हुई है। बता नहीं सकती थी तबीयत खराब थी तो? तैश में आकर उसका बाजू झंझोर डाला। आवाज मामूल से जरा बुलंद हो गई थी। ज़रमीने जो पहले ही बुखार की वजह से अधमुई हुए जा रही थी, उसकी डांट पर मजीद दिल भर आया था। आंखों से सील रवा होता चला गया। उसे बेआवाज रोता देख बासित ने ताज्जुब से आंखें बंद की थी, फिर खुद को मलामत करता नरमी से उसे अपने साथ लगाया था। वो इस इनायत पर मजीद फूट फूट कर रो दी थी। क्या कुछ याद ना आया था? दिल उसकी जरा सी हमदर्दी पाकर ही मचल उठा था। भल भल रोती जैसे वो अपने सभी सूदो ज़यां पर मातम ज़दा थी। ज्यादा तकलीफ हो रही है, कहीं दर्द हो रहा है? उसके रोने से खुद ही अंदाजा लगाते हुए उसके सर को सहलाते वो आवाज में नरमी और फिक्र लिए कह रहा था, बहुत तकलीफ हो रही है बासित। यूं लग रहा है जैसे ये दर्द मेरी जान ले लेगा, मगर मैं बहुत सख्त जान हूँ, इस बार भी बच जाऊंगी। ना जाने किस रोह में बहकर वो कह गई थी। बुखार ने उसके आसाब को झंझोर कर रख दिया था। उसकी लड़सती कमजोर सी आवाज में कही बात ने बासित को हैरान किया था। ऐसे क्यों कह रही हो? मामूली सा तो बुखार है, अभी हम हॉस्पिटल जाएंगे, देखना तुम सुबह तक बिल्कुल ठीक होगी। उसे सामने करते, उसका आंसुओं से तर चेहरा साफ करते उसे तसल्ली दे रहा था। जब हसन और मिराल भी उधर ही आ गए थे। माँ को यूं रोता देख वो सहमी हुई नजरों से उसके पास आए थे। मामा, क्या हुआ है आपको? बाबा ने डांटा है आपको? मिराल, जिसका बाप फेवरेट था, इस वक्त उसे नाराजगी भरी नजरों से देखती माँ से पूछ रही थी। हसन माँ का हाथ पकड़ चुका था। नहीं बेटा, मामा की तबीयत खराब है, अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। बासित ने नरमी से उसके खदशात दूर किए और ज़रमीने को शानों से थाम कर बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। हॉस्पिटल आकर चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उसे ड्रिप लगाई थी। वो आंखें मूंदे बिस्तर पर पड़ी थी, जबकि सामने रखी चेयर्स पर हसन और मिराल बाप के दोनों अतराफ उदास से बैठे हुए थे। बासित के चेहरे पर फिक्र के आसार बहुत नुमाया थे। वो अभी अभी ड्यूटी से वापस आया था। यूनिफॉर्म में उसकी शानदार पर्सनैलिटी और भी जचती थी। लाउंज में कदम रखे तो सामने अम्मी सोफे पर, जबकि यशल उनके आगे नीचे जमीन पर कुशन रखे बैठी हुई थी। उसके तेल से तर बालों से वो जान चुका था कि यौम चंपी मनाया गया था। सलाम देते हुए वो अम्मी के आगे झुका था, जिन्होंने उसकी पेशानी चूमी थी। इस दौरान वो उनसे नजर बचाकर बिल्कुल अपने पास कदमों में बैठी यशल की छोटी सी नाक भी उंगलियों में भरकर खींच चुका था, जो इसकी फुर्ती में अपना बचाव भी नहीं कर पाई थी। अम्मी के सर पर बूसा देते वो उनके पास ही बैठ गया था। मैं पानी लेकर आती, वो अपनी नाक सहलाती कहकर उठने लगी तो शहरियार ने टोक दिया, नहीं, तुम पहले बाल बांध लो। वैसे सास बहू में बड़ी मोहब्बत परवान चल रही है। चेहरे पर थकन के बावजूद वो बहुत फ्रेश सा बोल रहा था। मेरी अकलौती बहू है, मोहब्बत तो होगी। अकलौती की तो आप फिक्र ही ना करें अम्मी, अगर यही आपकी मजबूरी है तो हुक्म करें, 3 और की इजाजत तो शरीयत अभी भी देता है। बहू की लाइन लगा दूंगा। उसके लबों पर शरीर सी मुस्कान मचली थी। अम्मी ने उसे शाने पर चपत लगाई थी। यशल के चेहरे के जाविये बिगड़े थे। वो नाराज सी उठकर किचन में पानी लेने आई थी। शादी को जुम्मा 8 दिन नहीं हुए और मोहतरम की हसरतें चेक करे जरा। मजाल है जो कभी मेरी तारीफ भी की हो या कभी 2 मीठे बोल ही बोले हों। इन्हें तो सिर्फ जी जलाना आता है। पानी डालते हुए उसकी बड़बड़ाहटें भी अपने उरूज पर थी। दरवाजे के फ्रेम में खड़े शहरियार ने हंसी जब्त करते उसके दुखड़े सुने थे। मुझसे कुछ कह रही हैं मिसेस शहरियार? वो ऊंची आवाज में बोला तो यशल उछली थी।
ग्लास में पानी डालते बोतल से कुछ पानी भी छलका था। वो अब उसके करीब आ चुका था। नहीं नहीं, मैं तो सोच रही थी आपके लिए चाय बना लूं, रुके हुए हैं आप। इसको पानी देते हुए वो होठों को मुस्कुराहट के अंदाज में खींचती हुई बोली। वो वहीं काउंटर पर बैठते ग्लास लबों से लगाता उसे नजर भर कर देख रहा था। खफा चेहरा लिए वो उसकी आंखों को ठंडक बख्श रही थी। गिलास रखकर उसका हाथ थामकर उसे अपने आगे खड़ा किया था। अब वो खुद काउंटर पर बैठा हुआ, जबकि यशल उसकी दोनों घुटनों के दरमियान खड़ी थी। पता है तुम मेरे लिए क्या हो? जैसे जिंदगी के लिए सांसों की रवानी अहमियत रखती है, ऐसे ही मुझे लगता है तुम मेरे लिए जरूरी होती जा रही हो। तुम जिस भी हाल में हो, मुझे ये चेहरा दुनिया का सबसे पुरकशिश मुखड़ा लगता है। अब भी देख लो, तेल में चपड़े बालों के बावजूद तुम मुझे आसमान से उतरी कोई हूर लग रही हो। थोड़ा सा उसकी तरफ झुककर उसकी सभी पेशानी से अपनी पेशानी टकराते फर्द जज्बात से कहता, अपनी गंभीर आवाज से वो उसकी धड़कनें मुंतशिर करता चला गया था। उसकी पलकें लर्जी थी, होंठों के कोनों में शर्मगी सी मुस्कुराहट ने आकर अटकेली की थी, और ये खेल शहरियार ने बहुत मबहूत होकर देखा था। उसकी पेशानी पर अपना लम्स छोड़ता वो उसे शानों से पकड़कर नरमी से थोड़ा पीछे करता हुआ खुद नीचे उतरा था और उसके पास से गुजरता चला गया। अब यहीं खड़े खड़े बेहोश ना हो जाना, चाय बनाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। जाते जाते उसे छेड़ते हुए पीछे से हाँक लगाई थी। उसका बुखार अब कदरे बेहतर था। घर वापसी तक उन्हें रात हो गई थी। जरमीने को बेडरूम में लेटाकर वो खुद उसने किचन का रुख किया था। जरमीने के लिए चिकन सूप बनाने के लिए चूल्हे पर चढ़ाया। एक लंबा अरसा अकेले रहने के बाइस वो बहुत अच्छी ना सही गुजारे लायक कुकिंग कर ही लेता था। बच्चों के लिए सालन गरम करके उनको खाना खिलाया। मिराल माँ के पास ही सो चुकी थी, जबकि हसन उसके पास बैठा हुआ उसे देख रहा था, जो अभी भी दवाओं के जेरे असर गनूदगी में थी। गरम गरम भाप उड़ाता सूप का बाउल में लिए वो अंदर दाखिल हुआ था। जरमीने उठकर सूप पी लो, फिर मेडिसिन भी लेनी है। उसका माथा हाथ लगाकर चेक करते वो बोल रहा था। उसने मंदी मंदी आंखें खोली थी। सूजी हुई आंखें, सता हुआ चेहरा, चंद घंटों में ही उसको बुखार ने निचोड़ कर रख दिया था। वो कोहनी के बल उठकर नीम दराज हालत में बैठी थी। बासित उसके सामने एक घुटना ऊपर बिस्तर पर रखकर बैठा था और अब सूप चम्मच में भरकर उसकी जानिब बढ़ा रहा था। जरमीने सटपटाई, मैं खुद पी लूंगी। उसने कमजोर सा एहतजाज किया। नहीं, मैं पिला रहा हूं, तुम बस मुंह खोलो। वह मुश्किल उसे थोड़ा सा सूप पिलाया था। हसन बहुत गौर से ये सारी कार्रवाई देख रहा था। उसके चेहरे पर खुशी थी और निगाहों में बाप के लिए पसंदीदगी। वासित जरमीने को मेडिसिन देकर अब उसे लेटा रहा था। हसन बाहर गया है, उसे देख लीजिएगा प्लीज। तुम आराम करो, मैं देखता हूँ उसे। कहते हुए उस पर कंबल दुरुस्त करता बर्तन उठाकर वो बाहर निकल गया। लाउंज में नजर दौड़ाई, वो कहीं नहीं था। किचन में आया तो वो सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके कदमों की आहट पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से तेजी से नम चेहरा रगड़ा और गर्दन नीचे करते अपनी ठोड़ी सीने से लगाई। बासित बर्तन शेल्फ पर रखता पाकर उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठा बगौर उसका झुका सर देखा, जो अपनी चोरी पकड़े जाने पर शायद शर्मिंदा था। हसन यार, ऐसे रोते थोड़ी हैं। आप तो मामा के बहुत स्ट्रांग बेटे हो, ऐसे रोगे तो मामा को बुरा लगेगा ना। और देखना, सुबह मामा बिल्कुल पहले जैसे ठीक हो जाएंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता मामा जब रोती हैं, कमजोर सी आवाज में बोला गया जुमला था। नजरें हनूर चुकी हुई थी। बासित ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाया था और नरमी से उसके माथे का बूसा लेते अपने सीने से लगाया। मामा की तबीयत खराब है, इसलिए वो रो रही थी। उसे प्यार से बहलाया, मगर उसकी अगली बात ने उसे शिशित कर दिया था। वो वैसे भी रोती हैं बाबा, जब जब रात को मैं और मिराल सो जाते हैं वो बहुत रोती हैं, पर मैंने कभी उनको नहीं बताया मैं जाग रहा हूँ। वो समझदारी से उसे बता रहा था और बासित को छत अपने सर पर गिरती महसूस हुई। उसे लगा उसके सामने उसका अपना अक्सा खड़ा हुआ हो। वो क्या तारीख खुद को दोहरा रही थी। मुझे बुरा लगता था जब दादू मामा को डांटती थी, उनको जोर जोर से चिल्लाती थी। मामा तो कभी लाउड नहीं बोलती। वो अब भी आहिस्तगी से कह रहा था। बासित के लिए आज इंकिशाफात का दिन था। शायद उसके 5 साला बेटा उसे हकीकत के उन पहलुओं से रूबरू करवा रहा था जिनसे अब तक वो नावाकिफ था। ऐसे नहीं बोलते बेटा, वो बड़ी हैं, आपकी दादी हैं।
वो उसे आराम से समझा रहा था। मामा भी ऐसे ही बोलती हैं, मैंने कभी दादू को कुछ नहीं बोला। उसकी आवाज मध्यम सी थी। वो बाप को सफाई पेश कर रहा था। गुड बॉय, अब उठो और जाकर सो जाओ। उसे प्यार करते गोद से उतारा। बाबा आप मामा को मत बताना। मैंने आपसे जो दादू वाली बात की, मामा ने मना किया है। मैं और मिराल ये किसी को नहीं बताएंगे। बुरी बात होती है ना, तो वो मुझसे नाराज होंगी। वो रोने वाली बात वो भी ना बताना आप मामा को, उन्हें बुरा लगेगा। बासित को शिद्दत से अंदाजा हुआ था उसका बेटा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और हसास वाक़ई हुआ था। वो उलझन भरी नजरों से उसे देख बमुश्किल मुस्कुराया था। बासित का सुकून गारत हो गया था। उसका अंदाजा गलत साबित हुआ था। हस्सान की बातों से इतना तो मालूम हो गया था कि ज़रमीने ने उसके बच्चों के जहन में उनके दतियाल के बारे में कोई बुरी बात नहीं बिठाई थी। उसे कोई बात बुरी तरह दिमाग में खटक रही थी जिसे वो खुद फिलहाल समझने से कासिर था। वो रात उसने कुर्सी पर बैठकर गुजारी थी। ज़रमीने वाली तरफ आकर बेड से थोड़े फासले पर कुर्सी रखी थी। उस पर बैठकर उसने टांगे बेड पर जरा तिरछी सी दराज की थी। अपने वजूद को ढीला छोड़ते वो नीम दराज सा कुर्सी के पुष्ट से टेक लगा गया। इतने दिनों में वो पहली बार गौर से सामने लेटे वजूद का जायजा ले रहा था। वो चौंक कर सीधा हुआ। उसके करीब थोड़ा झुककर वो आंखें छोटी किए उसके कानों में पहने टॉप्स को बगौर देख रहा था। और बासित इनको कैसे भूल सकता था। शादी की रात ये टॉप्स उसी ने तो उसे मुंह दिखाई में दिए थे। अब उसकी नजर उसके चेहरे से होकर उसके सीने से जरा नीचे धरे बाएं हाथ पर पड़ी थी। वहां तीसरी उंगली में चमकती वो नीले रंग की अंगूठी उसे वर्ता हैरत में डाल गई थी। उसकी चमक आज भी वैसी ही थी। उसके साथ ही जहन के पर्दे पर एक भूली बिसरी याद नमूदार हुई थी। निदा के कॉलेज में कोई पार्टी थी। वो इस्लामाबाद से आया हुआ था तो वो बजिद हुई उसे नया सूट दिलाया जाए। वो निदा के साथ ज़रमीने को भी मार्केट ले गया था। निदा ने अपनी पसंद का फैंसी रेडीमेड जोड़ा लिया था। उसने ज़रमीने से भी कहा था मगर वो रसानियत से इनकार कर गई। बहन के सामने बासित को भी ज्यादा इसरार करना अच्छा नहीं लगा था। कुछ देर बाद उसकी नज़र ज़रमीने पर पड़ी थी जो इर्द गिर्द से बिल्कुल बेनियाज खड़ी थी। उसकी नज़रों के ताक़ुब में उसने देखा था वहां आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एक स्टॉल था। वो बहुत इश्तियाक से अपनी नज़रें एक अंगूठी पर जमाए हुए थी। वो एक नीले समंदर के पानियों सी चमक लिए छोटी सी नगीने से सजी नाजुक सी अंगूठी थी जिसके दोनों अतराफ नन्हे नन्हे सफ़ेद नग जड़े हुए थे। वो देखने वाले को अपनी जानिब मुतवज्जा करती थी। बासित के लबों पर बड़ी दिलफरेब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। वो उसके पास से चलता हुआ चंद कदम उठाता उस स्टॉल तक आया था और वो अंगूठी उठाता अब उसकी कीमत मालूम कर रहा था। वॉलेट से पैसे निकाल कर उस स्टॉल वाले को थमाए और वापस मुड़ा था। ज़रमीने ने आंखों में हैरत लिए उसे अपनी जानिब आता देखा जो बिल्कुल उसके सामने आन रुका था। जब इंसान के दिल को कोई चीज़ भा जाए तो बता देने में कोई मुज़ाहिका नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। इसकी बात का मतलब समझते वो आहिस्तेगी से बोली थी। अब वो उसकी जानिब हाथ बढ़ाकर खड़ा मुस्कुरा रहा था। ज़रमीने गड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगी थी। शर्म के मारे आड़े सुर्ख हो गए थे मगर फिर उसे यूं ही मुंतजिर खड़ा देख उसने झिझक कर अपना बायां हाथ उसके हाथ में दिया था जिसमें उसने वो अंगूठी पहनाई थी। और बासित को लगा था जैसे वो 500 की अंगूठी उसके नरमो नाजुक हाथ की मोमी उंगली में सचकर खुद पर नाजा हुई हो। उसका चेहरा नजरों के हिसार में लेते वापस पहले वाली पोजीशन में जाते उसकी आंखों में गहरी सोच की परछाइयां थी। उसकी दी हुई निशानियों को उसने अब तक खुद से अलग नहीं किया था। अगर इसकी जिंदगी में कोई और था तो उससे वाबस्ता चीजों को इतनी अहमियत क्यों दी गई थी। उलझन थी जो सुलझने के बजाय बढ़ती चली जा रही थी। सुबह फजर के करीब उसकी आंख खुली थी। कुछ वक्त लगा था जहन को बेदार होने में। वो उसकी जानिब करवट किए हुए थी। उसे देखकर हैरत का शदीद झटका लगा था जो कुर्सी पर ही बेआराम सी हालत में गर्दन पीछे की जानिब कुर्सी की पुश्त पर टिकाए सो रहा था। तो क्या वो रात उसके लिए यूं ही बैठा रहा था? इस सोच ने दिल को गुदगुदाया था। ज्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है ज़रमीने। इस शख्स की नर्म दिली से वाकिफ तो हो तुम। बस तुम्हारे ही मामले में पत्थर वाक़या हुआ है। दिमाग ने उसे जल्द ही आईना दिखाया था। बासित उठकर यहाँ बेड पर ले जाए। जरा हिम्मत करके उसका बाजू हिलाया
उसे आंखें खोलते देखकर कहा था, तुम ठीक हो? नींद के बाइस मामूल से ज्यादा भारी होती आवाज में पूछा। शर्मीने ने गर्दन हाँ में हिलाई। उठ क्यों गई हो? सीधा होता गर्दन को पीछे की जानिब से दोनों हाथों से दबाता एक और सवाल जागा। मुझे नमाज पढ़नी है। आप कहाँ जा रहे हैं? बेइख्तियार जबान से फिसला। अब उठ गया हूं तो मैं भी नमाज पढ़ लेता हूं। मुड़कर उसे देखा और फिर वापस वॉशरूम की राह ली। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया था। अब वो वहीं कमरे में जानमाज बिछा रहा था। शर्मीने ने उससे चंद कदम पीछे जानमाज बिछा रही थी। नमाज पढ़ते हुए किसी एहसास के तहत उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। वो पलके झपक कर नमी को पीछे धकेल रही थी। बासित नमाज पढ़ चुका था। अब वो दुआ मांग रहा था। फिर वो कुछ देर ऐसे ही बैठे उसके सलाम फेरने का इंतजार करने लगा। उसे सलाम फेरता देख वो उठकर जाए नमाज फोल्ड करता बिस्तर की जानिब बढ़ गया था। शर्मीने ने हाथ उठाए थे। अल्लाह ताला आप बहुत मेहरबान हैं। कल तक जो शख्स मेरा चेहरा देखने का रवादार ना था, आज उसकी इमामत में मैंने नमाज अदा की है। आज जब आपने इतनी करम नवाजी की है, इस आदमी के दिल में मेरे लिए थोड़ी सी विसत रख दी है। इसने मुझे अपनी जिंदगी में जगह दे दी है। अब इसके साथ इसके दिल इसकी मोहब्बत का भी तलबगार बन बैठा है। वो चेहरे पर हाथ फेरती हुई उठी थी। बासित अकबर अपने बाप की ना सही मगर अपनी माँ की अकलौती औलाद था। अकबर अहमद का ताल्लुक एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था। वो पढ़ लिख कर बैंकिंग में आता है और फिर उसकी शादी अपनी मामूजात समीना से हो जाती है। वो शकी और जबान की तल्ख खातून होती हैं, जिनकी वजह से आए दिन घर का माहौल खराब रहता है। उनकी एक बेटी भी थी, मगर दिलों में दूरी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही थी। शायद यही घरेलू नाचाकी ही थी कि वो अपनी एक कॉलीग की तरफ रागिब हो गए। सबा, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, धीमे मिजाज की सुलझी हुई तबीयत की पुरकशिश लड़की थी। अकबर अहमद की वजाहत पर दिल हार बैठी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उनका ताल्लुक भी गहरा होता चला गया और इन दोनों ने खुफिया तौर पर शादी कर ली थी। वो दोनों खुश थे। सबा की गोद में जल्द ही अल्लाह ने एक प्यारा सा बेटा डाल दिया था, जिसका नाम उसने बासित अकबर रखा था। एक लंबे अरसे तक उनकी शादी राज रही थी। फिर एक दिन न जाने कैसे समीना को पता लग गया। वो अपनी 9 साला बेटी को लेकर उनके घर आ गई थी और वहां रो पीट कर वो तमाशा किया था जो इर्द गिर्द लोगों का एक झमघट्टा बन गया था। बासित 6 साल का था। वो सहम कर एक कोने में जा रुका था। उसका नन्हा दिमाग कुछ भी समझने से कासिर था। वो हसास तबीयत का रोशन जहानत से चमकती आंखों वाला बच्चा इस औरत के अल्फाज समझने और इनका मफहूम जानने की कोशिश में लगा था। जब वो उसने उसकी माँ के चेहरा नोचने की सही करते हुए उसकी जानिब झपटने के अंदाज में बढ़ी तो मोहल्ले की कुछ औरतों ने उसे पकड़ लिया था। अरे इस जैसी डाइनें ही होती हैं जो दूसरी औरतों के शोहरों पर डाके डालती हैं, जिनका ना तो कोई किरदार होता है और ना ही कोई इज्जत। जहाँ खूबसूरत मर्द देखें वहीं राल टपकने लगती है। ना जाने कितने होंगे जिन्हें अपनी अदाएं दिखाकर पागल बनाया होगा। इसके मासूम जहन ने सिर्फ एक लफ्ज को समझा था, डाका, यानी कि चोरी। मगर इसकी टीचर ने तो कहा था कि चोरी करना बुरी बात होती है। फिर मामा ने चोरी क्यों की? वो अपनी समझ के मुताबिक सब देख और सुन रहा था जब उसका बाप वहां हाँफता हुआ पहुंचा था। हवाइयां उसके चेहरे पर भी उड़ी हुई थी। अब वो उस औरत की मिन्नतें कर रहा था, उसे वहां से चलने का कह रहा था। उसकी आवाज में किसी किस्म का रोबो दबदबा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेबसी और शर्मसारी थी। फिर वो उसे और 9 साला बच्ची को लिए वहां से चला गया था, एक भी नजर सबा पर डाले बगैर। वक्त गुजरता चला गया। अकबर अहमद कभी महीने में 1-2 चक्कर लगा लिया करते थे। फिर एक दिन वो आए तो बहुत खुश थे। पता चला कि उनके यहाँ इतने अरसे बाद बेटे की पैदाइश हुई है और इनकी आमद मजीद ताखीर का शिकार होती गई। उसने अपनी माँ को आधी आधी रात को रोते देखा था, मगर कभी अपने जागने का तासुर नहीं दिया। मामा, बाबा आप क्यों नहीं आते? वो अब नहीं आएंगे बेटा। आपकी मामा से एक गलती हो गई। आप मुझे बताएं, मैं आपकी गलती को फिक्स कर दूंगा। उसके आंसू अपने हाथों से साफ करते उसकी आवाज में एक अज़्म था। मामा की गलती इतनी बड़ी है कि वो अब कभी फिक्स नहीं हो पाएगी। मामा, वो आंटी कौन थी? 2 साल बाद वो पूछ रहा था। वो आपके बाबा की पहली बीवी है, बासित, आपकी बड़ी मामा। आपके बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपको अपने साथ ले जाएंगे। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छे से रहेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा।
अपनी बड़ी मामा और बहन भाइयों का ख्याल रखेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मामा। बासित समझ नहीं सका था उसकी माँ ने ये सब क्यों कहा था, और फिर वक्त ने उसे बताया था जब एक रोज उसकी माँ अचानक से बेहोश हो गई थी। वो अपने छोटे छोटे हाथों से उसको हिला रहा था, उसका चेहरा थपथपा रहा था, मगर उसकी एक पुकार पर जवाब देने वाली उसकी माँ खामोश हो गई थी। रोते हुए वो भागा था, साथ वाले घर से आंटी को बुलाया था, उससे अस्पताल ले जाया गया था, मगर तब तक सांसों की डोर टूट चुकी थी। डॉक्टर्स ने बताया था वो दिल के आर्जे में मुब्तला थी, उसके दिल की शरियानें बंद हो गई थी और उसे हॉस्पिटल लेकर आने में देर कर दी गई थी। उसका बाप किसी लुटे हुए जुआड़ी की तरह आया था और उसे खुद से लिपटाकर किसी दीवाने की मानंद धारे मार मार कर रोया था। उसकी मोहब्बत ने एक जिंदा दिल, जिंदगी से भरपूर वजूद को तबाह और बर्बाद करके रख दिया था। जिंदगी उस पर इस कदर तंग हुई कि उसका दिल जो कभी उसके लिए धड़कता था, उसकी बेवफाई, नारसाई ने वो धड़कनें तक छीन ली थी। उसे उसकी मौत से ज्यादा अपने पछतावे पर रोना आ रहा था, मगर अफसोस वक्त रेत की मानंद उसकी मुट्ठी से सिरक गया था। अकबर अहमद उसे साथ ले आए थे। समीना ने उसे खुले दिल से अपनाया था। अकबर अहमद समीना के मशकूर दिखाई देते थे। वो उसके इस एहसान के नीचे दब कर रह गए थे जो वो बासित को अपने बच्चों की ही तरह प्यार से पेश आ रही थी। शऊर की दहलीज पर कदम रखते जो सोच उसके दिल दिमाग को जकड़ चुकी थी, वो उसे समीना का कर्जदार कर गई थी। उसे लगता था उसके माँ बाप की वजह से उस औरत ने जो तकलीफ झेली है वो उसका मदावा अब उसे ही करना था, एक अच्छा मोहब्बत करने वाला फर्माबरदार बेटा बनकर। वो इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था जब अकबर अहमद की वफात हुई। उनके मरने के बाद वो माँ और बहन भाई के लिए एक मजबूत सहारा बन गया था।